Hello and welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY's app and the continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup in Australia. The news out of Hobart is that Bangladesh won their match and the other match between South Africa and Zimbabwe has ended without a result. Here is the match summary of this last match on your screen. Zimbabwe batted first, 79 for 5. The game was reduced to 9 overs and then the South Africans had to get that total in their allotted overs, but then that was reviewed from 9 overs to 7 overs and they could only play 3 overs. The rain interrupted the game and this is how the Group 2 points table looks like because Zimbabwe and South Africa both get 1 point each. So it's Bangladesh right on top. They got their game in, 2 points. India with their 2 points at number 2. Zimbabwe at number 3. South Africa at number 4. Pakistan at number 5 and Netherlands at number 6. Now, these 1-1 points that have gone to Zimbabwe and South Africa, they could probably help Pakistan or Netherlands' case if they win all their remaining games. We have to see how this shapes up. It's just too early to say that. But I guess that is one thing that the management, both in Pakistani and the Netherlands camp, will be looking at. With me in the Pavilion, I have got the icons, the legends, the superstars. The 4 gentlemen served the game of cricket and our beautiful country, Pakistan, with their dedication, determination and hard work. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis and Wasim Akram. Gentlemen, another good day of cricket. Unfortunately, we couldn't get a game to finish in the end. But let's start off with the South Africa versus Zimbabwe game. Whatever little we saw of the South African batting there, Wasim, I really had chills. Yeah, I know. We said early on in our shows that one of the side के आप देखें इसको ये कुछ ना कुछ इस World Cup में कर सकती है. और I think they were too good for Zimbabwe to start off with. Unfortunately for South African fans and team or players, they obviously will be upset. But whether you can't control कि वो 1 point मिला instead of they were winning, cruising actually. I think they're fast bowling. They played 4 fast bowlers. South Africans, Van Parnell, Nagidi, Norkia, and then Rabada. And then, of course, Quinton de Kock, what a player he is, one of my favorite players in this format. He just never stops. He started from the first ball. You know, usually we say, let's get in, take a single, rotate the strike, and then play, feel the pitch, feel the opposition. That guy never stopped. Yeah, he actually never even bothered to check. No. I mean, batting with a very modest strike rate of 261%. Strike rate ठीक नहीं था. No, but and his partner there, Temba Bavuma, he had 100% strike rate with 2 balls. So, I mean, that was sensational stuff from Quinton de Kock. Yeah, that's why we say the South Africans are the dark horses in this competition. You said that earlier today as well, yes. They're a dangerous side. They have got, most of the bases covered. They're one hell of a fielding side also. Don't Always forget. has been. Always has been. I mean, इतना नहीं देखा आज, ज़्यादा नहीं देखा. जो देखा उसमें भी glimpse आपको नजर आया. They've got pace. Nokia was bowling almost 150 clicks. Rabada, we all know that what he's capable of. और फिर Parnell really impressed me. He's coming after a long time. Played all around the world, have got lots of experience now. और उसका ये advantage है, उसका और नगीदी का ये उनको advantage है कि both can bat also. So that is a massive advantage with 4 genuine pacers, with 2 of them के जो अच्छी batting भी कर लेते हैं. So guys, they're very good all-round team. Using these conditions beautifully. Yeah. Instead of playing Tabrez Shamsi, they are playing extra fast bowler. Yeah. So 4 fast bowler and a spinner and genuine fast bowlers. I think they believe in stats also. और वैसे भी यहाँ पे जो wrist spinner है उसकी economy थोड़ी ज़्यादा है finger spinner की. और normally Zimbabwe is a strong side batting lineup. वो spin के against अच्छा खेलते हैं. And they know, इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा पेस खिलाई है और तेज वाले बॉलर खिलाए हैं. उन्होंने आगे गेंद किया है नहीं, उनको वही बैक ऑफ अ लेंथ उन्होंने गेंद मारा है जो कि आप ना पुल कर सकते हो, ना कट मार सकते हो, ना ऑन दी आप खेल सकते हो. एंड अदर रीजन वाज दैट दे नो कि रात का मैच है तो इसलिए भी उन्होंने स्पिनर एक खिलाया. और नॉर्मली दूसरा उनके पास ऑप्शन है, माकरम अच्छी बॉलिंग करता है बीच में,
तो वो उनके पास एक ऑप्शन है स्पिन The length we were talking about? Yep. Sorry, back of a length Back into of- the stumps. And then huge run out miss there. They But kept yeah, bowling that's, that hard that's the line. Aussie pitches. Interestingly, you said Nokia was already almost in the 150 mark there. And this is a Hobart pitch, which is slightly slower than the rest of the venues. Yes, I'm thinking how this fast bowling attack is going to figure out on faster wickets, maybe like Perth or something like that. Yeah, they won't be easy. They will come at you. South Africans are very tough cookies as a team as well, mentally, physically. ये तो हमेशा fit रहे हैं वो. That's no doubt about it. Since our days, they were miles ahead of us as far as fitness concerned. I think that's what their culture is, their regime is. अच्छा शोएब बड़ी जिंक्स टीम रही है वैसे साउथ अफ्रीका की. You know, they've been within the grasp of a semi-final or a final and then just not been able to do it. And again, unfortunately, they've not had a very fortunate start today. आज फिर बारिश ने जो है उनको has pretty much robbed them of that 1 point. You know, that could have put them up on the group. Or that could have put them up. You can take it positively. Yeah. That happened to us in '92 World Cup. We got 1 point. We were playing average cricket against England, and that point made us qualify. So as a team, you be thinking Both positive, sides. not Yeah, be positive. negative. Sorry, Shebi. But for South Africa, I guess, I don't think they're Right now, I know. They'll be the proper history. upset. But I guess more importantly, their flying start. So it seems their upfront batters, we have seen Quinton de Kock, how he started. So that means he's in good form. And having the attack which they have, उसके बाद मेरा ख्याल है कि सब टीम्स को Alert हो जाना चाहिए. अलर्ट भी होना है और अच्छा प्लान भी करके आना. No, Waqar has been on this right from the word go that we started the Pavilion this season. He's been pointing towards South Africa. He's been saying that South Africa is a team to watch, to look out for. I mean, न्यूजीलैंड ने एक ट्रेंड सेट किया पहले स्टार्ट ऑफ यू नो विद फिन द वे ही प्लेड और आई गेस पीपल हैव टू टेक द लीड फ्रॉम दैट क्योंकि इसी तरह खेलना पड़ेगा आपको पावर प्ले को पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा. You got to hit maximum boundaries. I know pitches will be a little bit more bouncy, but that's what this World Cup is offering. So you got to be prepared for that. और जिस तरीके से ये क्विंटन de Kock स्टार्ट हुआ है, let me explain to viewers कि as a bowler अगर कोई बैट्समैन मुझे पहली गेंद पे मिडल से उठा के ये चौका मारता है और अगली गेंद में ऑफ स्टंप पे करता हूँ वहाँ भी चौका मारता है, then I am panicked as a bowler. I might not show it, but back of my mind, the 20 different plans are running. ये बॉल मैं कहाँ करूँ, बचूँ कैसे, और जब आप बचने जाते हो आपको ज़्यादा मार पड़ती है. Yeah, look at that. I mean, he just That was his first ball. didn't matter where you pitched. ये हो सकता है कि अगर जहाँ ऐसा कोई बैट्समैन आ जाए जहाँ आप बॉल कर रहे हैं वो वही मार रहा है आपको, फिर उसका बेस्ट यही होता है. स्पेशली दो फील्डर्स ऐसी जगह पे बाउंड्री लाइन पे लें और वहीं बॉलिंग करें. एक शॉट भी बीच में रह जाए तो वो चांस है आउट होने का. So you have to buy the wicket. Yes, you have to buy the wicket, otherwise you'll be struggling as a team. Yes, Waqar. लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे इनको थोड़ा रश था, इनको रन्स बड़ी जल्दी और टाइम भी कम DNL का बारिश भी issue आ था. रही थी तो he played that way and he came really good. I would like to see him playing against some quality fast bowlers when they come hard at him at 145, 150. Then I will see कि ये किस तरह लगती है. It's not going to be easy. ये ग्राउंड थोड़ा सा बाउंड्रीज भी साइड छोटी हैं. अगर आप जब मेलबर्न जाएंगे दूसरी पर्थ पे जाएंगे तो साइडें जब बड़ी होंगी तो फिर then you'll see how you And pick they'll up. be upset in general because the जीता हुआ match, point मिला each. They'll be more upset on the match officials. They took 5 minutes to calculate the DNL. calculate the Duckworth-Lewis. Yeah. And those 5 minutes could have saved this game अगर वो waste ना होते तो. You know, Runs पूरे हो जाते. where in all fairness, umpires are not really mathematicians and officials are No, not. you just need to put a score in the computer. In the It's not, computer. they don't have to do A slow computer maybe? एक दूनी दोनी दूनी चार तो नहीं करना ना उन्होंने. नहीं, but I'm just there is making a it easy. third on the- umpire also sitting. There's a referee Fourth sitting. umpire. There's a Fourth umpire umpire. also. So I mean, Fourth umpire, I have no idea what his job is. okay. Be the fourth umpire. That's his job, basically. Interesting. You know, at one point, the screen we were all looking at, and it said required run rate 5.61, current run rate 24 point something. And I was like, okay, that's really, really strange. With that, let's start off with the fall of wickets brought to you by Coca-Cola. Time for Player of the Match brought to you by Zira Plus. Flying Moments brought to you by Emirates Airline. Best Bowler brought to you by McDonald's app. Jubilee Safe Hands brought to you by Jubilee Insurance. And it's time for Game-Changing Moments brought to you by Pepsi Cola. And time for Super Moments of the Day brought to you by Jazz.
Refreshing moments of the day brought to you by Tapal Danedar Dane Dane Pe Likha Hai Peene wale ka naam. Fielding effort of the day brought to you by Pampers. And time for the way forward brought to you by Bank Al Falah. All right, let me bring this to you, Waqar and Wasim, both the way forward for the fourth umpire, the third umpire, and the officials in calculating the DNL fast so that we don't lose any time. I suppose way forward is there's a referee up there and a fourth umpire. They should know that the weather is a bit dodgy. Let's do the calculations beforehand. Probably they know, I don't know what happened there, but taking ऐसे मैच में क्लोज गेम में 5 मिनट आपने ज़ाया कर दी इसी में डिसाइड करने में. सो एक तो SOP होना चाहिए कि विद डॉजी वेदर मेक श्योर कि 5 आफ्टर फर्स्ट इनिंग्स आफ्टर द बैटिंग साइड हैव गॉट देयर रन्स, सेकंड टीम गोइंग इन, बिफोर दैट जस्ट गेट द डकवर्थ लुइस डन. यूजुअली ये कर लेते हैं इनिंग्स के दरमियान और पर्ची दूसरी टीम को मिल जाती है दोनों को कि 5 ओवर में इतना चाहिए, इतनी विकेटें मुसारा. तो आज शायद इन्होंने नहीं किया. Maybe that's why. DRS तो this is very simple. Yeah. ये तो आपको पर्चा मिलता है आपको. Right. आपको फौरन ना इस तरह के मैच में वो फोर्थ अंपायर आता है, वो आपको एक पर्चा देगा जिससे ओवर बाय ओवर आपको लिखा होता है, उसमें विकेट्स भी लिखी होती है कि कितनी फॉल हुए तो कितने रन चाहिए, कितना ये. I honestly don't know what exactly happened. But yeah, किसी को मालूम नहीं था कि ये 5 मिनट इतने कीमती हो जाएंगे कि इस पे मैच का फैसला होगा. Let's ask South Africans what they think. Yeah, I know. Yeah, I don't think they want to talk about that. And that was the way forward brought to you by Bank Al Falah. And with that, we are going to go into a break. But before we do that, we'd like to wish everybody celebrating around the world a very happy Diwali from all of us here in the Pavilion and at A Sports. Remember, you are watching the Pavilion on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. And we are going to continue our coverage of the ICC Men's T20 World Cup momentarily right after these messages. Welcome back from the break. You're watching the Pavilion. मैं हूं Fakhr and this is A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Now, there was another game earlier today, and that was Bangladesh clashing with Netherlands. Now, Bangladesh won the game. Is the match summary on your screen now. Bangladesh batting first, 144 for the loss of 8 wickets in their 20 overs. Afif there with a nice 38 and Shantu there with a good 25. Looked good on the scorecard from the Netherlands side. Good bowling effort overall. And they were good in restricting Bangladesh to 144. But in response, Netherlands in their 20 overs could only manage 135. But Akram there right on top, 62. That was a good, fine innings. And of course, the bowling by Tashkent was just phenomenal, 4 for 25. Bangladesh winning that one by 9 runs and picking up 2 valuable points. Let's talk about this game. Bangladesh, the batting, Waqar, do you think that batting was really to par of what Bangladesh can actually do? No, I don't think so. I mean, they got out of the jail, I would say, because at one stage it seemed like that the middle order जिस तरीके से फेल हो रहा था और वो कैच ना अगर ड्रॉप करते, अफीफ का कैच एक ड्रॉप हुआ, अगर वो कैच ना ड्रॉप करते, story would have been maybe different, because 144 भी even इन्होंने बड़ा स्क्रैची सा किया है, मतलब कि बड़ी मुश्किल से मर के इन्होंने 144 किया. और फिर उसके बाद थैंक्स टू टस्किन जो पहली 2 बॉलें उसने की हैं, वहाँ पे मैच उसने ख़त्म कर दिया. अगर वो कहीं पार्टनरशिप लग जाती छोटी सी, इवन 15-20 रन की भी, तो क्योंकि चेज छोटा था तो ये मुश्किल हो सकती है. बांग्लादेश स्टिल नॉट देयर येट. एंड में हल्का सा ड्राया उन्होंने, थोड़ा सा ड्राया, नीचे से विक्रम ने 24 किया, 14. हाँ जी, गुड टू सी टस्किन बॉलिंग रियली वेल. He looked really good. He bowled good pace and good lines and good lengths, and those 2 early wickets in the first 2 balls really broke the back. And then I think couple of silly runouts by the Netherlands team. Wo run out unnecessary the. Obviously credit to Bangladesh fielders the way they fielded. They dropped couple of catches, but those 2 runouts were very crucial. And I think again जो इसके स्कोर कार्ड से लग रहा है, देखो 144 है, एक बैट्समैन ने किया है, अफीफ ने किया है 38 of 27, and then मुसद्दक
ने आके बचाया है थोड़ा सा, उसने 20 किया 12 गेंदों पे, नहीं तो ये 125 ही स्कोर होना था इनका। सो दे शुड नो एंड लर्न, दे एक्सपीरियंस प्लेयर है, बड़े पुराने, ये सोमिया सरकार, लिटन दास, ये मैं बड़े पुराने नाम सुन रहा हूँ, 10-10 12-12 साल इनको हो गए हैं बांग्लादेश के टीम के इर्द गिर्द। सो यू नो दे शुड नो कि इस ऑस्ट्रेलिया शॉर्ट नहीं लगनी, लेट्स गेट टू 150 कैसे, बिकॉज हम शायद रोक लें। और ये आई थिंक लॉन्ग रन में इनको जो इनका 5वां बॉलर है वो भी इनको फर्क डालेगा विकी। Yeah, that would. Shoaib, what you saw that Bangladesh innings. What do you think they're lacking right now? आई गेस स्टार्ट नहीं मिल रहा, और इस फॉर्मेट में फर्स्ट 3 बैटर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटर्स। उसमें से कोई भी एक बड़े रन्स करता है तो आप यू गेट टू अ गुड टारगेट, या अगर आप चेस कर रहे हैं तो भी आप चेजिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। छोटे छोटे ग्लिम्स नज़र आते हैं बट वो कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आती जहाँ पे बड़े रन्स बन सके। देखिए शॉट्स इनको सारे आते हैं और काफ़ी टाइम से खेल भी रहे हैं, जैसे वसीम भाई ने बताया। आई गेस अब ये टाइम हैज़ कम टू यू नो कि थोड़ी कंसिस्टेंसी लाएं और ताकि टीम को एडवांटेज हो सके। और ओपनिंग स्लॉट में तो पार्टनरशिप मिल गई थी, 43 रन हो गए थे इनके पहली विकेट पे। लेकिन वसीम भाई अगर दोनों का वकार भाई दोनों का स्ट्राइक रेट देखें ना तो वो वैसा नहीं है। ऐसे स्टार्ट के बाद भी अगर अगले 2 जल्दी आउट हो जाएं, जैसे लिटन दास 9 रन पे आउट हो गए, शाकिब अल हसन 7 रन पे आउट हो गए, शाकिब को रन लगी, थोड़ा सा बॉल वेंट स्ट्रेट टू द थिंग। अगर थोड़ा सा ये स्टार्ट मिल जाता इनको तो ये जहां 144 हुए थे 160 प्लस भी हो सकते थे। बिल्कुल ऐसे है। मिसबा, what about that Netherlands bowling effort? They bowled very decent. बिल्कुल मेरे ख्याल में वो पूरे टूर्नामेंट में ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, और आज फिर मेकरन ने आके वो जिस तरह वो अटैकिंग बॉलिंग करता है, बाउंसर्स और फुलर लेंथ, उस पर उसने आगे विकटें ली और उनको मुसीबत डली। पहला इवन सोमिया सरकार को भी जो बाउंसर किया उसने, वो बेसिकली एक बॉलर ऐसा है कि जिसको उन्होंने अटैक के लिए रखा और वो डिफरेंट लेंथ्स पे बॉल करता है। उसके अलावा ऑब्वियसली उनकी जो बाकी बॉलिंग लाइनअप है, प्रिंगल बिकॉज ऑफ द लेफ्ट हैंडर्स ही बॉल ओनली 2 overs 10 रन दिए। उनका मेन बॉलर है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है। आई थिंक ओवरऑल नेदरलैंड डिड वेल इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। इस पिच पे मेरे ख्याल में थोड़े से डिसअपॉइंटेड ज़रूर होंगे, उनके पास चांस था ये मैच जीतने का 144, स्पेशली विद बांग्लादेश बॉलिंग लाइनअप के जिसमें उनके मेन सिर्फ 4 बॉलर से वो खेल रहे हैं और 5वां पार्ट टाइमर है। तो आई थिंक कि ये बड़ा एक अच्छा चांस मुझे लगता है कि नीदरलैंड से ज़ाया हुआ है, जो कि आज मैच वो जीत सकते थे। बिल्कुल। और इनकी अगर बांग्लादेश की थोड़ा सा और डीप जाया जाए इनकी बैटिंग में, शांतो को तो मैंने देखा है ऑन एंड ऑफ, ही स्कोर 25 of 20, बट सोमिया सरकार who bats at number 3, usually in his career he batted number 2, 3 and 4 as an opener and 1 down and number 4. His record is not that great. I mean, if you see his record, 251 runs, 16 innings, average of 15, just over 15, strike rate of 112. That's his career average. और ये खेल ही जा रहा है 10 साल से। रहता है और हर टीम में उसकी वजह से मुझे लगता है कि अब 8वें नंबर पे मुसद्दिक इज़ क्वाइट इफेक्टिव, बड़ा अच्छा वो नीचे। आज भी उसने आके जो 12 गेंदों में 20, 8वें नंबर पे आप ऐसे प्लेयर को खिला रहे हो, उसको सिर्फ 12 बॉलें दे रहे हैं, और 8वें नंबर पे भी बैट्समैन आ रहा है, नूरुल हसन भी खेल रहा है, वो भी ऑलमोस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है। एंड देन अगेन आप कहीं ऊपर से भी अटैक नहीं कर रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से आप खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बिकॉज दे ये वही प्लेयर हैं जो 10-12 साल से नजर आ रहे हैं, नहीं कोई बैटर इनमें आ ही नहीं रहा, नहीं या ग्रूम नहीं कर रहे। आई मीन दे हैव अ प्रॉपर सिस्टम, प्रोड्यूस नहीं कर रहा, दे हैव अ प्रॉपर सिस्टम। But I suppose the pitches are as such, maybe because, like I said, love of the game is huge in Bangladesh. हाँ शेबी, आप कुछ कह रहे थे। सोमिया सरकार he has been bowling for Bangladesh team. जैसे वो 4 बॉलर्स के साथ खेलते हैं तो उससे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 3 जो है ना, 3 या 4, कभी कभी वो 4 ओवर जो आके कर जाता है। आज भी उसने 3 ओवर कराए हैं और 29 रन दे के 1 आउट किया है। तो इस वजह से आई गेस थोड़ी सी कंपनसेशन हो रही है उसकी, अगर उसके बैटिंग के स्टैट्स अच्छे नहीं हैं। But Bangladesh, they have been utilizing him as a bowler as well, 5th bowler. I think what they can do is, I mean, I understand ये नूरुल हसन जो wicket keeper खिला रहे हैं, you know, they can always, you know, ask Liton Das to do the wicket keeping job, and they can bring in maybe a Mehdi Hasan who's a very good bowler. नया ball भी करता है, वो is a cunning bowler. So I think maybe they can make that change, but
but Nurul Hassan has been a captain also. अभी उसमें जब साकिब नहीं आया था पिछले न्यूजीलैंड सीरीज में तो he was captain also. So I don't know what's going on there, but I feel to create a balance of the side and also the bowler का एक कम कर रहे हैं, एक bowler कम है. Maybe that's the way to go, or maybe bring another fast bowler if required. Okay, let me ask you this, Misbah. So Wasim pointed this out. He said that it doesn't seem like they're producing batsmen that are coming up the system. They have a lot of domestic structure. They have a very good domestic structure. But are Bangladeshi players playing in leagues and not the 20 over format? I'm saying like in the English league or county or somewhere like that. Are they playing any cricket? I don't think so. I नहीं think खेल Shakib- रहे हैं Pavilion mostly. is the only cricketer, and if I'm not wrong, Tamim Iqbal. Okay. So these two, I think, have तमीम played. शाकिब उससे पहले ऑब्वियसली लिटन दास भी कहीं ना कहीं खेलता है बाकी इनके ज़्यादातर प्लेयर नहीं खेलते हमारे ज़माने में भी कोई नहीं थे. I mean, बांग्लादेश के मुस्तफीज भी खेला है. मुस्तफीज खेला है हाँ, मुस्तफीज T20 खेला है. फॉर्मेट खेले हैं ये मोस्टली. जी white ball, I think. T20 See, Wasim, from Pakistan, a lot of club cricketers, good ones, or even grade 2 trophy players used to end up playing league cricket in England. Yeah, now league has been tough. Right. Now I think you have to produce a certificate कि I played 5 first class games of this season. वो आपको PCB देता है, I suppose, and then you go attach that document with your visa application. Right. And then you get the visa. Okay. So it's more of an immigration issue, but Yeah. but there used to be a time when we used to have a lot of players. lot of and- league cricket. I mean, first year Imran Bhai sent me to play league when in '86. We were meant to tour in '87. Talk about planning. '87 में हमने इंग्लैंड टूर करना था. तो इमरान मैंने कहा तुम 86 में मुझे कहा कि अप्रैल से पहले ही कि यार तुम 4 महीने फारिग बैठे रहोगे तुम लीग खेलोगे सर हमने टूर पे जाना है. सर आई डोंट नो लीग के में खेलनी है. देन ही ऑर्गेनाइज थ्रू मसूद चिश्ती. मसूद चिश्ती साहब ग्रेट गाय. उनके थ्रू उन्होंने ऑर्गेनाइज किया. धर्म में बर्नअप फील्ड एक क्लब है छोटी सी जहाँ से ग्रेट कॉलिन मेलबर्न जो इंग्लैंड से खेले हैं. ही वाज फेमस अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टेस्ट प्लेयर. ही प्लेड विद वन आई. उसको एक आई वो स्टोन की थी. आई सपोज वो ग्लास की थी. सो आई प्लेड इन हिज ग्राउंड. द फनी थिंग वाज was he a batsman? या कॉलिन मेलबर्न With one eye? Yeah. With one eye of glass. Yeah, that's just phenomenal. That's ਸਾਨੂੰ amazing. 2 लाल नजर नहीं आता. That's phenomenal. I mean, 10:30 के बाद क्योंकि आपका सोने का टाइम है. Yeah, so उससे बड़ा फ़र्क पड़ा था मुझे. Obviously, first 2 week I was lost. I didn't know who to talk to. It was a different culture, and they put me in a 1-bedroom place somewhere. It was cold. I was alone. Then eventually I found out that Mohsin Kamal, Ali Zia, Mansoor Rana, all these cricketers, they were all around Dharam. Yeah. So we used to hang out together. I found Mohsin Kamal. We shared a room for about a month or 2. Evening में we had 50 pound हफ्ते का मिलता था. It was enough for us for food. Right. वो खाना वाना खा लेते थे. एक बंगाली रेस्टोरेंट ढूंढा हुआ था वहाँ चले जाते थे. Yeah. And yeah, we found a ship as well. It's Newcastle में मुझे ठहराया हुआ था. It's a twin cities, Newcastle and Durham. Beautiful. Yeah. Newcastle में से रिवर गुजरता है उसमें एक शिप था. लिबर्टीज के नाम से वहाँ नाइट क्लब होता था. तो मैं उत्थे पाया जाना था. हे डेज में आप यार क्या करते हैं? yeah, there's nothing wrong with मैंने that. कहा शायद आपने शिप में वो कमरा लिया हुआ था. No, it was a night club. Yeah, but that's thank you for sharing that. These are really, those little gems that we need on our show, and I know the fans really want to 4 know. महीने तक आगे कोई टूर नहीं था. नहीं, वो समर तब होता नहीं था ना. It was summer में there was no cricket in Pakistan. It was off season. So hence you go to play league or if you picked up by county. Yeah. But eventually season became all year round. Now it's all year round. So yeah. All right, thank you for sharing that story with us, Wasim. Tuscan bowled really well today, picking up 4 wickets. And Waqar, what was he doing different today? He's been quite an effective bowler operator for Bangladesh in the past. Yeah, Tuscan has struggled a lot in his career. He had few injuries also. I coached a team where he was there also. A beautiful action. I really liked the attitude of the boy also. He's tall. He's about 6'3". Vicky, उससे फर्क पड़ा होगा एलन डोनाल्ड के आने से कोई I psychologically. mean, he didn't have best of the New Zealand series. He was stonked all over. Yeah. But once he gets it right, once he lands in that region, that area, he gets that outswing also. That's a beautiful delivery. That's the length. This is an Aussie length. That's where you need to, especially in T20 cricket. Or, if you bowl that ball and you pick up 2 early wickets, you're always winning the game. And today he
he was outstanding. He picked up, I think, 3 wickets or 4 wickets maybe. Yeah, he picked up 4 wickets. And won the man of the match also, and won his team a game also, and 2 points. That's a big achievement. Yeah. Quickly to take that, you said that's the Aussie length to bowl. That's what Yeah. you bowl on the Australian pitches. And I'm just going to go back to Pakistan's game yesterday, Misbah, quickly on that one. That's not the length we saw from, in fact, both the bowlers on both sides. मेरे ख्याल में दोनों तरफ से जो फास्ट बॉलर्स को जितनी भी बाउंड्रीज हुई अगर आप देखें हार्ड लेंथ पे कोई स्पेशली छक्का कोई नहीं पड़ा। वो स्लोअर वन थे या आपने यॉर्कर करने गए या आगे किया बॉल, तो मुझे लगता है कि रियलाइज़ नहीं हुआ। टीमों से रियलाइज़ उसमें आउट के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप यॉर्कर करते हैं या स्लोअर वंस पे चले जाते हैं तो वो फिर आउट के चांसेस उतने नहीं थे। Let me tell the difference between इस What Taskin was doing? इस लेंथ की और जो पाकिस्तान का मैच था। पाकिस्तान के मैच में जो इंडिया ने जब बॉलिंग शुरू की तो वो लेंथ डिफरेंट थी, और पाकिस्तान के टाइम पे थोड़ी सी लेंथ डिफरेंट करनी पड़ी। अगर आप देखेंगे क्योंकि पिच was behaving differently. पिच थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी डैम्पनेस थी, जिसकी वजह से शुरू में गेंद आगे फेंकने से जो कि मीन बाबर को भी जो बॉल हुआ तो जुप करके जो हम कहते हैं ना टक करके अंदर आया। लेकिन स्लो था वो बॉल, तेज हाँ वो अब आप देखेंगे ना। लेकिन जब क्या नाम है शहीन बॉलिंग के लिए आया या हमारे बॉलरों ने बॉल किया तो वो गेंद स्विंग नहीं हुआ। ठीक है ना, बॉल ऐसे जो बनाना जो इसका बनता है वो उस तरह बनाना नहीं बना, तो हमें फिर लेंथ थोड़ी ये करनी पड़ी, थोड़ी सी लेंथ थोड़ी पीछे करनी पड़ी, तब जाके बचत हुई। वरना अगर आप आगे करते या उनके बैट्समैन तैयार होते तो जो शहीन ने अर्ली ऑन बॉलिंग की है तो उस पर बाउंड्रीज लग सकती, बट इतना प्रेशर था उनके ऊपर शहीन का कि दे जस्ट हैव टू ब्लॉक हिम आउट। सो अगर इस तरह की ड्राई पिच है जहाँ पे इतना नहीं हो रहा, देन यू हैव टू हिट दैट लेंथ बिकॉज दैट बाउंस विल कम इफेक्टिव। अगर थोड़ा सा मॉइस्चर है जो कि पहली इनिंग में था तो भुवनेश्वर कुमार आगे फेंक रहा था, ही वाज आस्किंग द बैट्समैन टू कम ऑन द front foot. Yeah. Front foot पे then if it's just deviates off the length, then it's tough. It becomes very, very tough. Wasim, how as a bowler, as an operator, do you quickly adjust? Okay, this is not working. वो इस pitch पे ये तुम कर नहीं रहा जो पहले कर रहा था ball. How do you adjust that? How do you does the captain come up to you and talk here? ये नहीं हो रहा. The ball is not doing this. What happens then? नहीं, थोड़ा मुश्किल है यंगस्टर्स के लिए, स्पेशली ऑजी पिचेस पे बॉलिंग करना। मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था, एज अ यंग किड यू गो देयर, यू सी द बाउंस, यू गेट एक्साइटेड, वो देयर इज अ बाउंस कैरी, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। वो हमारे विकेटों पे तो वो घुटनों तक ही आता है, मे बी इफ़ यू आर लकी। सो दैट वो एक्साइटमेंट एक आ जाती है, फिर आप थोड़ा पीछे मारते हैं, वहाँ पे आपको कट और पुल पड़ती है। उसको लगता है आपको स्ट्रेट अवे 1-2 मैचों में नहीं लगता, आपको 2-3 मैचों में सोचना पड़ता है कि वो लेंथ क्या है। वो लेंथ एकदम तो आती नहीं है, वो लेंथ आएगी आपको लंबी क्रिकेट खेलने से आती है इवेंचुअली, कंसिस्टेंसी इन दैट लेंथ। Alright, with that it's time for the way forward, brought to you by Bank al-Falah. And the way forward, Misbah, let me bring this one to you. What should be the strategy for Netherlands going on forward in this World Cup now? देखिए ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि आज भी उन्होंने काफ़ी मिस्टेक्स की, स्पेशली बैटिंग में। वो सुपर 12 का एक जो प्रेशर है, वो जो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे थे, मेरे ख्याल में उसको हटाना चाहिए, फ्री माइंड हो के खेलना चाहिए। स्पेशली अगर आपको 144 करना है, आपके पास चांस आया, अर्ली ऑन घबराए हुए थे, इतनी जल्दी आपकी 2 विकेटें गिरी, फिर एक आपने रन आउट, मेन प्लेयर आपका रन आउट हो गया, तो वो उससे इनको बाहर निकलना है। जस्ट गो देयर, एक्सप्रेस योर सेल्फ, और अगर एक ऐसा कोई चांस आ जाता है आपके पास, यू गॉट नथिंग टू लूज़। अब आप उसको ज़्यादा प्रेशर अगर ले रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि पता नहीं दूसरी टीम क्या करेगी, तो फिर आपसे परफॉर्मेंस नहीं होनी यहाँ पे। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस तभी होगी फ्री होके खेलेंगे, कहोगे फाइन वट एवर द स्कोर इज़, गो देयर, और उसको थोड़ा सा अगली टीम पे प्रेशर डालें, अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलें जो अभी खेलते हुए आ रहे थे पहले। All right, and that's the way forward with Bank al-Falah. And on that note, we're going to take a break here at the Pavilion. You're watching A Sports and Sports and the ARY's app. We'll be right back after these messages. Welcome back from the break. I'm Fakhr. You're watching the Pavilion on A Sports and Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. With me in the studio, I've got the legends, the icons, Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis, and Wasim Akram. Now, before we get going, let's take a look at the Babar Azam press conference yesterday after the India-Pakistan clash. All right, there you have it. Waqar, I'm going to bring this straight to you.
बाबर saying there कि हमने तो अपना बेस्ट दिया, अपना बेस्ट देने का वो होता है. Do you think Pakistan gave their best yesterday? Yeah, I think so. I think they gave their best they could. It's just T20 cricket is like that. T20 cricket में होगा आपके some days might not work, some days it works. Yes, nerves को control करना पड़ेगा. Maybe learning from this going forward is के जब इस तरह की situation हो कि आपको 48 रन आखिरी 3 ओवरों में चाहिए हो तो then you have to really control your nerves and you really think hard and there has to be a strategy, there has to be a planning, which I thought was a little bit missing. थोड़ा panicky mode में ज़रूर लगे. But good thing about Babar and team is that he always backs them up and always encourages them. And I think that's all you can do, especially if you're in the middle of the biggest tournament in the world. So आप इस वक्त ये नहीं कर सकते कि तू गलत कीता तू गलत. You can't blame हम जो हैं हम बैठे हैं. हम भी किसी को blame नहीं कर रहे. I think as a nation we've been supporting. If anything else, we've been very very supportive. Shoaib, you wanted to add something? एक चीज़ हो सकती थी उसमें स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टनसी ऐड हो सकती थी. कैसे? वो ऐसे ऐड हो सकती थी कि इफ्तिखार स्कोर्ड रन्स, टुक अ ब्रिलियंट कैच इन द स्लिप्स. जिस दिन ऐसा कोई ऑलराउंडर हो और उसका अच्छा दिन चल रहा हो तो उससे एक ओवर करवाना चाहिए, स्पेशली जहाँ पार्टनरशिप लग गई हो. जहाँ पे हार्दिक पांड्या और विराट की पार्टनरशिप लगी थी वहाँ पे एक ओवर इफ्तिखार से करवा सकते थे. वो इसलिए करवा सकते थे कि जो ये गेम है कॉन्फिडेंस की, कोई भी अगर आप गेम खेल रहे हैं. और हम लोगों ने देखा है कि मोस्टली जो मैचअप्स हैं उसमें अगर राइटी खेल रहे हैं तो ऑफ स्पिनर को नहीं लगाते. लेकिन जब पार्टनरशिप लग जाए तो स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन्स दे डू ब्रिंग एन ऑफ स्पिनर इन फ्रंट ऑफ 2 राइटीज. तो मुझे ये एक चीज़ लगती है कि एक ओवर कराया जा सकता था. that would have been a huge gamble. No, I wouldn't have. देखिए वसीम भाई, जब पार्टनरशिप लगी आपके चारों बॉलर्स We understand that it means either it's do or die. No, that's No. वो अपना mindset हम अपना different है. अभी Two different schools of thought. So, Waqar, you wanted to add something? नहीं, मैं सिर्फ ये शोएब ने पॉइंट बड़ा अच्छा रेज किया है कि आपको छठा बॉलर चाहिए होता है ना. वो तो हम कह रहे हैं एंड ही वुड हैव बीन द 6th बॉलर. सिर्फ क्वेश्चन यहाँ ये रेज होता है कि जी आप उसको कब करवाते, क्योंकि 10 ओवर तक 11वें ओवर तक तो आप एवरीथिंग वाज इन कंट्रोल. आपका जो बेसिकली कंट्रोल हाथ से निकला है या आपका मोमेंटम आपसे जो निकला है वो 12वें ओवर में निकला ना, जब नवाज को 18 या 19 रन हुए उस ओवर में आपको सारा कंट्रोल निकला है. तो उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं था. उससे पहले गेम आपके कंट्रोल में थी. तो आई दैट्स हाउ यू थिंक एंड आई फील वहाँ पे रिस्की होता है. मेरे ख्याल में जो आपका छठा बॉलर है उसको आपको सीधा ओवर करवाना चाहिए या 7वां ओवर करवाना चाहिए या 8वां देखना चाहिए अगर उस विकेट गिरी है. क्योंकि जब आप 5 बॉलर्स के साथ खेलते हैं तो आपको छठा बॉलर अगर चांस मिले, स्पेशली व्हेन यू डिफेंडिंग, उसका छठे, ये ना सोचें कि नवाज जो है वो 3 करेगा या शादाब 3 करेगा. क्या पता चलता है जी स्पिनर्स के अगेंस्ट वो अच्छा खेलते हैं. हो सकता है आपका शाहीन या नसीम या हारिस उनको मार पड़ जाए तो उनका वो आगे चौथा ओवर कर जाए. तो that's my point. वो कर लेते हैं. Misbah, what would you like to add something to that? We've heard 3 different opinions of this. जो टीम खेली है, सबसे पहले तो टीम सिलेक्शन जो वकार भाई ने वो ठीक नहीं थी एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टेकन बाय द टीम मैनेजमेंट एंड कैप्टन. नहीं, जो टीम खेली है पिच के हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियस था ग्रास, जितना ग्रास था. एंड देन यू हैव द सेम प्रॉब्लम इन द एशिया कप फर्स्ट गेम अगेंस्ट इंडिया कि वहाँ भी नवाज को आपको आखिरी ओवर कराना पड़ा. तो ये एक मिस्टेक थी. बट द टीम जो हमारी टीम खेली है उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था. मेरे ख्याल में जो डिवीज़न ऑफ ओवर्स थी वो ठीक थी. जो स्ट्रेटजी थी उस पे ज़रूर मैं थोड़ा सा मुझे इतराज़ है कि एट टाइम्स बॉलरों ने तो इन्होंने ही बॉलिंग करनी है, बट हमारे साथ थ्रू आउट ये हो रहा है व्हेन वी आर डिफेंडिंग, व्हेन अवर गेम प्लान इज़ वर्किंग, वी आर टेकिंग विकेट्स. और हम प्रेशर में जब तक नहीं आते हम मैच जीतते हैं, हम डिफेंड करते भी जीत जाते हैं. बट व्हेनेवर दूसरी टीम ने हमारे पे प्रेशर डाला है, चाहे वो एशिया कप हो, फाइनल हो, इंडिया वाला मैच हो, कल का मैच हो या और भी बहुत सारे मैच हैं, वी हैव नो प्लान बी. सो दैट्स मिसिंग.
कल जैसे हमें मार पड़नी, जैसे ही उन्होंने वो जो 12वां ओवर लगाया नवाज का, हम तितर बितर हो गए। उसके बाद वी हैवंट चेंज आवर प्लान कहीं पे भी। इवन लास्ट में भी जो अभी मैं पहले बात कर रहा था कि आप मैच पूरे में देख रहे हैं, नॉट अ सिंगल हार्ड लेंथ बॉल वेंट फॉर 6, नॉट अ सिंगल हार्ड लेंथ बॉल फ्रॉम द फास्ट बॉलर्स वेंट फॉर 6। अब यहाँ पे आप देखेंगे विकेट टू विकेट ही हमने बॉल किए हैं। यहाँ पे जब आपको ऐसे नज़र आता है गो कि उनके बॉलर को भी हमने देखा है, लेफ्ट आर्मर को, उसने स्टंप्स में जब बॉल किए सीधा भी छक्का पड़ा, उसको मिड विकेट पे भी छक्का मारा इफ्तिखार ने, बिकॉज सामने की बाउंड्रीज छोटी हैं। यहाँ पे आप स्मार्टली पहले से अगर आपने प्लान किया हो तो एक्स्ट्रा कवर आपने बाहर लिया है तो आप बाहर दूर बॉल कर सकते हैं, कट वाला बॉल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप मिक्स करते हैं। जब आपको नज़र ही आ गया कि ये सिर्फ बड़ी हिट्स मारने जा रहे हैं, बट वी वर जस्ट स्टन कि वो अटैक हुआ है और हम वहीं पे फीड करते गए। और प्रेशर में जो नवाज था वो उसका जो प्लस है इन हिज बॉलिंग इज हिज स्ट्रीट स्मार्टनेस, जो आपने ये बात की, वो वेरी करता है पेस। कल उसने सिर्फ एक ही पेस से आगे मुंह में किए गया, एक ही पेस में वो। That's where the street smarted in skipper comes in to talk to the guy, take a minute off, have a word, put your arm around his shoulder and stuff like this. So my question here, देखिए हम बैठ के यहाँ पे बहुत सारे अब तो किए जा सकते हैं हम, and it's great to have different views on different things. मेरा जो व्यू इस पे है, मैं समझता हूँ कि वो जो 12वां ओवर था जब वाटर हुआ है तो they were nowhere. We were cruising that game, literally we were cruising that game. और उसके बाद 11वां ओवर शादाब ने आके किया और वहाँ पे थोड़ा सेंस होना शुरू हो गया था कि देखो ना कम आफ्टर अस। नो अ स्मार्ट कैप्टन और एन एक्सपीरियंस कैप्टन अगर होता वहाँ पे तो वहाँ नवाज को वहाँ आप अपने मेन बॉलर कराते कि उनको वहाँ पे एवरेज 12-13 पे चली गई हुई थी। वहाँ पे अगर आप 2 ओवर अच्छे कराते किसी से, एक आप नसीम से करा लेते, एक आप हारिस से करा लेते, तो शाहीन से करा लेते, या शाहीन से करा लेते, शाहीन वाज प्रॉब्ली स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट। तो आप वहाँ से अगर करा के अगर वो ओवर जो बड़ा था वो कहीं 2-3 ओवरों में उतने रन आते तो वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी देन। ये तो मोमेंटम भी चला। ये तो हाइंडसाइट की गुफ्तगू है ना सर। We're just talking in hindsight, right? The captain is there in real time, things have to be decided and all that. But I'm sure he will be after learning with listening it. to all four of you, here is a question that comes to mind immediately, and that is, look, we claim to have one of the best bowling attacks in the world. I'm sorry, I have a reservation on this. So do Okay, I. so here's what I'm saying is that we claim, right? I'm not saying that we do have. I'm saying there is a claim out there. There is in different circles. This is what people say. Oh, one of the best bowling They attacks. say because all three of them are 140 plus. That's all they say. लेकिन अगर हम उसको देखें कि इंडिया से हम जो दोनों मैच जीते हैं, वर्ल्ड कप का भी जीते हैं, बॉलिंग ने हमें ठीक है जिताया उसमें, 152 पे रोकना इंडिया को वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। देन वी चेज, बट 182 भी हमने प्रेशर में चेज किया एशिया कप में उनके अगेंस्ट। बैटिंग में हम वो कर रहे हैं, बट मेरा जो पॉइंट है बॉलिंग हमारी बहुत आला कर रही है, ज़बरदस्त कर रही है, अनटिल वी रियली पुट अंडर प्रेशर बाय We are confronted by pressure. Simple as जब that. मैच आपका स्टेक पे आता है वहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम हमारे जो जितने सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का, एशिया कप का जो फाइनल था वो, उसके बाद ये वाला मैच, इवन फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान मैच एशिया कप का, वो भी मुझे लगता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये बॉलर कर सकते Okay, हैं। hold that thought there. Shoaib, you immediately disagreed with that claim, which I said was a claim. I'm not saying that it is factually, No, but I'm not but saying here it. you said that I disagree with that, or I have a please elaborate. Because your bowlers are best in the world when it comes down to first 10 overs. Second part of the game, आप second part of the game stats निकाल लें, जितनी दफ़ा crunch situation में मैच गया है by defending, most of the time हम लोग हारे। Okay, then this So- takes me to the next question. To you, Waqar. He's saying that the first 10 overs में बड़े ज़बरदस्त हैं, which includes the power play. Correct, Shoaib? That's what you're saying? Yeah. अभी हमने जो डिस्प्ले देखा है एलन फिन की तरफ से और जो हमने देखा है क्विंटन डिकॉक की तरफ से, what happens when we come, face to face with such explosive power? They will be tested. I mean, अगर हम ये कहते हैं कि जी हमारे बॉलर ओवरऑल नहीं अच्छे हैं लेकिन पहले 10 ओवरों में अच्छे हैं, मेरा तो फर्म बिलीव है कि दीज आर वेरी गुड फास्ट बॉलर्स। हाँ, प्रॉबली प्लानिंग में या प्लान बी जो मिसबा बात कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है, उसमें कहीं ना कहीं
इनको probably और learn करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, but I honestly feel that this is the best fast bowling attack. Shaheen Agar, once he gets back, he'll be a different beast, I promise you that. Welcome back from the break. I'm Fakhr. You're watching The Pavilion on A Sports and Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. With me, Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis, Wasim Akram. And before the break, we were having an intense conversation about the Pakistani bowling, the bowling unit. And you had a question, Wasim, that you wanted to ask. My question, you remember you spoke about a little while ago discussing about Pakistan team performance and Babar की कप्तानी पे भी कुछ question आए लोगों के जो हैं जो rightly so street smartness वो कप्तान कैसे सीख सकता है कप्तान either you have it or either you don't can you learn street smartness especially in cricket for a batter it's a lot more easier because बैटिंग जो है ना वो आर्ट है स्पेशली जब उसको रन्स बनाने होते हैं ना तो बॉलिंग आर्ट नहीं है You have just offended two of the greatest bowlers in the game has ever seen. You've just offended two of the greatest bowlers on the planet. आज जरा ज़्यादा मेरे ख्याल में चुकन्ने बैठे हुए हैं ये मैंने पहले भी बोला था कि बैटिंग जो है वो आर्ट है ने मन भी ले तू कि मैं पहले बोले मेरा ख्याल है 200 अगे पीछे मेरी इंटरनेशनल विकेट भी नहीं था मैं आप ही बोल रहा चलो किसी ने कहा है कि उर्दू बोले अंग्रेजी में बोलने का समझ नहीं आ रही अच्छा चले तो हाँ वो क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए बच्चों देखिए स्ट्रीट स्मार्ट वसीम भाई जब आप स्ट्रीट स्मार्ट की उर्दू बताएं पहले जनाब उनके मिसबा ने फरमाइश की उर्दू में बात करें वो बंदे ने किया यार वो बोल यार उर्दू में वो डेढ़ होशियारी लेकिन एक चीज अच्छी है जी कि खाने के बीच में इन्होंने किसी और की भी बात सुनी है वरना उधर बस मेरी आज मिसबा की मैंने प्लेट देखी है मैंने ट्वीट देखी है आफ्टर ही एट दैट चिकन I swear. Leave it there. Leave it there. Never seen. Just leave it there. I've never seen anything like this in my life. अगर आप बब्बर शेर को भी डाल दोगे ना वो भी इतनी सी बोटी छोड़ देगा हड्डी के साथ बिस्मिल्लाह तो ऐसे करके नहीं जैसे खाई मैंने 40 साल में ना मैंने बड़े मेरे दोस्त ऐसे हैं जो गोश्त खोर हैं मैंने उनको देखा सीन द मीटिंग नहीं उन्होंने मैं खांदियां देखी है यकीन करें ऐसी हड्डियां नहीं मैंने देखी बस you know who showed me he did बस भाई एक्चुअली ये बात वैसे मिसबा बताने वाली है हड्डियां देखे ना मैं कि हम सब अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए थे सुकून से और तैयारी कर रहे थे पोस्ट मैच की एक बंदा बकायदा मिसबा की प्लेट को उठा के ला के उसने सबको एक पूरा इंस्पेक्ट कराया ये देखें और तो जो आप तीनों के कमेंट्स आए थे वो भी बता दो देखिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रीन रूम की जो सारी खबरें What happens in the ग्रीन रूम की खबरें तो मेरे मैनेजर पे छोड़ दो वीडियो बना के ला देगा पूछे बगैर कभी अंज बैठे हुए हैं कभी अंज बैठे हुए हैं जिम मास्टर गोगो वसीम भाई आपने पता है क्या कमेंट किया था हड्डियां देख के हां क्या आई डोंट रिमेंबर लेट्स गो चलें जी what happens in the green room yes. what happens in the green let's room go. should stay in the green room yes and that's that Street so the first rule all of a about sudden Fight Club we had is- such a serious conversation going It's on good that it's I just have no broke the- idea now where we were the first rule of Fight Club is yes because Let's there's go. no Fight Club there is no fight club that's true that is true Go on. फाइट विद इन द फाइट it is fight with them Go on. so Shoaib you were making a point स्ट्रीट स्मार्ट वसीम भाई आप ऐसे ही बनते हैं अगर आप कैप्टनसी करते हुए आए जैसे मैं कह रहा था कि जब आप क्रिकेट शुरू करते हैं अंडर 13 14 he did 15, he was 16 captain under 19 2010 बाबर आजम तो स्ट्रीट स्मार्ट यही है जब क्रंच सिचुएशन में मैच जाए उस टाइम पे कुछ आप ऐसा डिसीजन लें जब आपके सारे बॉलर्स जो हैं वो पिट रहे हैं या उनको रन्स हो रहे हैं तो फिर आप एक ऐसा बॉलर लगाते हैं कि जिस पे देखें एज अ बैट्समैन आई एम श्योर मिसबा भाई कैन आंसर दिस कि जब आप अच्छे मेन बॉलर्स को स्कोर बना रहे हो एज अ बैटर तो एकदम कोई ऐसा नॉन रेगुलर बॉलर आए या छठा बॉलर आए जैसे मैं कह रहा था तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं एज अ बैट्समैन तो उससे वो फ़र्क ज़रूर पड़ता है और स्ट्रीट स्मार्टनेस यही है कि उस टाइम पे कोई ऐसा डिसीजन लिया जाना चाहिए था क्योंकि विकेट के बगैर हम जीत नहीं सकते थे Okay, so I think the assumption should be here after listening to all the conversation. We have
an issue that needs to be addressed. Now let's talk about how do we address that issue. So clearly yesterday a lot of you said that we are one bowler short and we're cushioning the batting, लेकिन cushioning batting को cushion करने का कोई फायदा नहीं है, हमें bowling को cushion करना चाहिए. Correct वकार? Yeah, I'm all for it. और ये मैंने पहले भी कहा और मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ एक हमें बॉलर या तो फ़हीम को टीम में होना चाहिए था, अगर फ़हीम नहीं है तो देन सेक्रीफाइस ऊपर से करना पड़ेगा. सेक्रीफाइस क्या, आपका नवाज उतना अच्छा खेल रहा है, शादाब अच्छा खेल रहा है, वही तो आपके मिडिल ऑर्डर बैटिंग में जो रन्स कर रहे हैं, जो थोड़े बहुत रन्स हो रहे हैं जी, तो वो तो कर ही रहे हैं आपके. So then why are you playing Asif at number 8? I'm not saying to take Asif out of there. Right. All I'm saying is you're playing Asif as a genuine batsman who can't bowl, and he's batting at number 8. So I think that's where you don't need 8 batsmen. So and then आपको शाहीन ने भी बता दिया कि बैटिंग मैं भी कर लेता हूँ. So I don't think you तो need मेरा सवाल ये है आपसे मिसबा के मौजूदा सूरत हाल में जो अवेलेबल स्क्वाड है हमारा, what is the fix within that? एक बैट्समैन कम करके आप सिंह जूनियर को खिलाना पड़ेगा आपको अगले मैच. वैसे भी आप अगला मैच पर्थ में है और दूसरा है भी जिम्बाब्वे के साथ. आपने देखा कि साउथ अफ्रीका ने आज उनके खिलाफ अपने मेन स्पिनर को बाहर बिठा के फास्ट बॉलर को खिलाया. तो आप हैदर अली या आसिफ को ड्रॉप कर सकते हैं. आई थिंक सो. आसिफ को भी आप बिल्कुल ही मतलब उसकी बैटिंग भी अगर आ भी रही है तो वो आप उसको भेज रहे हैं 7वें 8वें नंबर पे, जिसको भी दोनों में से आप समझते हैं कि वो बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में आपका काम आपको दे सकता है, उसको आप खिलाएं. और दूसरे की जगह मेरे ख्याल में अब टीम की ज़रूरत है. टीम की ज़रूरत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपके पास स्पिनर का कुशन तो है, आपके पास एक एक्स्ट्रा स्पिनर है, अगर कहीं स्पिन होगा तो वहाँ पे इफ्तिखार कर सकता है बॉलिंग, या लेफ्ट हैंडर आते हैं तो वो इफ्तिखार कर सकता है. लेकिन फास्ट बॉलिंग आपके पास एक तो फास्ट बॉलर का बैकअप नहीं है, और अगर स्पिनर को इवन शादाब कल कर गया 4 ओवर, अगर वो भी फंस जाता तो देन आपके लिए और मुश्किल हो जाता है ये मैच कि आपने किस तरफ जाना है. वसीम भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नॉर्मली जो टीमें लंबी बैटिंग करती है ना, जो लंबी 7वें 8वें तक बैठे, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड गॉट डेप्थ है, बहुत डेप्थ है बैटिंग में. 9वें नंबर पे भी उनका बैट्समैन ऐसा है जिसके फर्स्ट क्लास में सेंचुरीज हैं. सो दे हैव गॉट अ लॉन्ग बैटिंग लाइन अप. सो वो उनको प्रॉबली वो इसलिए उनको चाहिए होता है क्योंकि बिकॉज दे प्ले वेरी एग्रेसिवली अप फ्रंट. इवन ऑस्ट्रेलिया को भी देख लें, न्यूजीलैंड को, अप फ्रंट दे कम वेरी वेरी एग्रेसिवली. सो दे फील कि अगर हम 1-2-3 ऊपर से आउट होते हैं तो देन वी शुड हैव दैट डेप्थ. वी डोंट डू दैट, वी डोंट प्ले दैट. वो हमारा टैक्टिक्स नहीं, हम उस तरीके से नहीं खेलते. सो आई फील कि अगर हम आराम से खेलना है या हमने वो बिग हिट्स नहीं या रिस्क नहीं लेना है तो देन यू डोंट नीड इट. इतनी डेप्थ नहीं चाहिए. दैट शोज के मिडिल ऑर्डर में बिलीव नहीं है. ये भी है. ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस अब देख लेना, हैदर अली को काफ़ी अरसे से चांस मिल रहा है. आई वाज ऑल फॉर हिम. ओके, यू कैन गेट आउट एज अ बैट्समैन, अच्छी गेंद पे आउट हो गए हो, वंस इन अ वाइल गंदी शॉट मार के, और एवरी टाइम यू प्ले अ शॉट दैट शोज के यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद योर बैटिंग. अब नेसेसरी हो गया वो इसलिए कि आपके जो 2 ओपनर्स हैं दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट. ठीक है, उनको देखते हुए फॉरगेट अबाउट एडिंग अनदर बैट्समैन इन योर बैटिंग लाइनअप, कम करना चाहिए. बल्कि इतने कंसिस्टेंट होने के बाद तो मेरे ख्याल में 2 ऑलराउंडर्स आपको डाल देने चाहिए, बॉलिंग ऑलराउंडर्स, क्योंकि वो इतने कंसिस्टेंट है. और अब तो शान भी उसने रन्स किए हैं, कल इफ्तिखार ने रन्स किए हैं. सो नाउ यू हैव 4 बैटर्स, दे आर इन गुड फॉर्म. तो आप जरूर एक बॉलर जो है इवन नवाज और शादाब दे हैव बीन स्कोरिंग, वो भी अच्छी फॉर्म में है. वो भी अच्छी फॉर्म है. लेकिन अगर आप इन पे ही चले जाएं, देखें अगर आपके 2 ओपनर्स इतने कंसिस्टेंट हैं, हर सेकंड गेम में दे बोथ रन्स, तो फिर उस पे तो मेरे ख्याल में बॉलर्स डेफिनेटली आना चाहिए. So I hope that we get to see a decision from the management, a more positive one, that they would actually go and consider this idea. Yeah, we can. Let's hope so, inshallah. I think they will do it. I think they must have learned the lesson from that. और I have no doubt क्योंकि खेल भी पर्थ रहे हैं, तो पर्थ में अगर स्पिनर ही ऐसा है कि जिसको आप लूटने की कोशिश करेंगे, तो स्पिनर अगर कम हो तो ज़्यादा बेहतर है. Yeah, so important for us to have less spinners. With that, we are going to take a break on the Pavilion. When we come back, ये hashtag अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, hashtag Ask the Pavilion. आपके सवालात Ask the Pavilion, there you go. ये आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तो आप अपने सवालात जो है हमारी तरफ रवाना कीजिए इस हैशटैग के साथ, and I'm going to ask our experts to reply to them. But please make sure कीजिएगा कि रेलिवेंट सवालात हों और लॉजिकल सवालात हों. और आखिरी चीज़, अगर सवाल रिपीटेटिवली मुख्तलिफ लोग पूछ रहे हैं तो किसी एक ही का वो सवाल जो है उसको हम यहाँ पर लेंगे. We see you on the other side of the break.
Welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं The Pavilion and we've had quite a spirited discussion about the game yesterday. एक चीज़ जो हमारे पास सोशल मीडिया पे बहुत सारी आ रही थी, एक सवाल आ रहा था, एक ऑब्जर्वेशन आ रही थी, ये हम शेयर कर लेते हैं. Of course कल हमने बात की कि क्या कानून है नो बॉल का, and we said we don't want to there is no controversy in it. We don't want to add to controversy. Should there have been a different call? Should technology been used? हाँ, maybe, yes, sure. But let's not spoil the fun here. This is a Cricket World Cup. We've still got 5 games to go. मगर जो observations हैं, they are very interesting. Now, एक चीज़ जो मेरे panelists के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, अब आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, वो जब जो फ्री हिट थी, उस पर जब विराट कोहली की स्टंप्स जो हैं वो डिसलॉज हुई हैं, उस वक्त क्या हुआ है ज़रा ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको दिखाते हैं. There you go. He gets out. All right, stop that. and अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, वापस आइए, ये आप वापस लेकर आए, वापस लेकर आए, वापस लेकर आए, वापस लेकर आए. Keep going, keep going, keep going, keep going, and you see, and it's going to be a very interesting. Keep going, keep going, keep going. Let it go. And थोड़ा सा पीछे जाएं और जाएं आप. बॉल जब डिफ्लेक्शन होता है दूसरे कैमरे से. And there you go. ये पीछे आए, एक फ्रेम और पीछे आए. जब ये वाइड शॉट आएगा, this is something that a lot of people. There you go. Wait. Now, interestingly, Shaheen Shah Afridi was at fine leg, and जब ball impact करती है wickets के साथ, it's a free hit. Shaheen Shah Afridi actually went into a celebration mode and took a step forward towards the action side instead of going after the ball. Misbah, what happened here? आई थिंक लेट रियलाइज़ किया उन्होंने. पहले यही लगा कि आउट हो गया, बाद में रियलाइज़ किया कि ये तो फ्री हिट, आउट नहीं है. इतनी देर में बॉल निकल गया और ये दोबारा रियल टाइम में देखिए. यही तो बात करते हैं ना, गेम अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस की. आपने ये भी नोट किया है कि वो 4 कदम आगे था सर्कल के. जी, जब उनको 4, 8 को 6 स्कोर चाहिए तो अब सर्कल के बाहर से आके यहाँ पर देखिएगा आप, सर्कल पे there is, he raises his hands अगर ये and then he, सर्कल से होता तो ये बॉल आराम से रुक जाता. एक ही स्कोर होना था ये. that is मैं एक चीज ऐड करूं. जी. आप लोग सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को फोकस कर रहे हैं, आप नवाज और रिजवान को एक दफा फोकस कर. वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे. They also got excited. ऑल्सो उनको भी ये रूल नहीं पता था. अगर आप एक दफ़ा और प्ले हो जाए ना, ये देखिएगा, रिजवान अभी चलते हुए सामने आएंगे, अंपायर को वो करेंगे कि क्या है, बोल्ड हुआ है, व्हाई दे रनिंग. Interesting point. I don't think they were running in celebration. They were just running toward the stumps. के जी, अगर थ्रो होती है तो just running toward the stumps more than anything else. देखिए 2 दफ़ा रिजवान ने हाथ यूँ उठा के, it's like you're asking a question to umpire कि विकेट स्टंप्स को बॉल लगा है तो why they running, क्यों वो रन ले रहे हैं. Right. तो I देखो guess शायद रूल बुक दी हो हर लड़के को, मिलती है हर वर्ल्ड कप से पहले, वो पढ़ना लड़के का काम है. Am I right? अब ऑफिशियल्स आपको बता ही सकते हैं, मैनेजमेंट आपको बता ही सकती है. मैनेज का नहीं पता कि ये चीज़ हो सकती है, उसका थोड़ी ना बताएंगे. वो लड़कों ने खुद रूल पढ़ने होते हैं. और कई दफ़ा ये रूल तो जेहन में भी नहीं था कि ये लॉ चेंज हुआ है कि आप बोल्ड होंगे नो बॉल पे तो फ्री हिट तो है ही है. Interesting. फिर अगर आप नवाज की सेलिब्रेशन भी देखें ना, वो समझे आउट कर तो वो नॉर्मली विकेट लेके ये उसकी सेलिब्रेशन होती है. जो अभी उसने ये बॉल करने के बाद, अगर ये देखें, ये देखें, ये देखें, उसकी एक्साइटमेंट नहीं है. देखें जब द गेम इज ऑन, तो वो सेलिब्रेट कर रहा है इस चीज को. Correct. ठीक है, तो आई गेस इट शोज के हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में थे कल. But हमारी जो this ball also shows another thing, and that is if at some point a ball like this was delivered earlier, a Yorker length off stump and far outside the off stump. पुप्पी को मूछें होती तो अच्छा कहते हैं. यही वाली बात Very है. good यार. वो रिजवान को जरा देखते हैं. रिजवान की पोजीशन आखिरी ओवर में वसीम, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी. एंड एक्सप्लेन टू ऑल आवर व्यूअर्स हियर, व्हाई डू यू थिंक दैट वाज, व्हाट वाज द स्ट्रेटजी देयर. वकार, यू टेक अस थ्रू. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगे रिजवान अभी जब ये आखिरी ओवर में. Look where he's standing. What was the strategy there? A lot of people I are think really ये विकी आंसर करने नहीं. My observation is, it can be wrong, but it's my observation कि ये प्लान बना है there and then. कि यार ये कर लेते हैं, कीपर पीछे चला जाता है. So you mean a stroke of street smartness at the moment? Look, obviously not. वही मिसबा ने एक्सप्लेन किया in length yesterday and today as well in the morning कि जब आप एज अ बैट्समैन, इनको पता है इसको शोएब को कि मैं स्टंप तो हो नहीं सकता,
और ये रेगुलर फास्ट बॉलर भी नहीं है, इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, कितना कि तेज कर लेगा, करेगा तो आगे करेगा, वो यॉर्कर टाइप वॉली होगी तो मैं सीधी दूंगा। बाउंड्री छोटी है तो यू आर अलाउइंग हिम के यार नीचे से फुल टॉस बना ले, अगर यॉर्कर को या लेंथ बॉल को मुंह में बना के वो मार सकता है। वैसे मोमेंटम आता है जब आप डाउन द विकेट जिसे कहते हैं निकल के मारना, उसमें मोमेंटम आता है। आप स्पिनर को खेल रहे हो या मीडियम पेस को खेल रहे हो, मीडियम पेसर को, तो इससे एक मोमेंटम आता है, तो फ्लो में आपका शॉट जो है जो बाउंड्री के अंदर भी रह सकता है वो भी बाहर चला जाता है। तो वो आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान टीम के लिए और पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के लिए कि यार 2-3 मैच हो गए ऐसे, नाउ वी नीड टू लर्न। अब हमने इस सिचुएशन को, हम इसमें से 2-3 दफ़ा गुजर गए हैं ना, तो हमें अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, काम कैसे रहना है, और उस टाइम पे बाबर ने स्पेशली क्या करना है। क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन से आपकी गुजरे होंगे। मैं 7 साल कप्तानी में बड़े मैच ऐसे साउथ अफ्रीका में आया है, शारजा में आया है, PSL में आया है ऐसे मैच। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक तो ये होती है उस टाइम पे कप्तान के लिए कि आपने बॉलर को बचाना है लोगों से, ज़्यादा एडवाइजेस से ज़्यादा। अगर लोग दौड़ रहे हैं आपके बॉलर के पास ना, तो बॉलर जो है वो गया। आप सिर्फ इट शुड बी योर वॉइस कि उसकी और आपकी कम्युनिकेशन है, फाइनल मैसेज सिर्फ आपने देना है उसको, या आपने कम्युनिकेट करना है कि एक्चुअल हमारा प्लान क्या है, ताकि वो क्लियर हो उस चीज़ में। That makes sense. और इसके बगैर मेरा नहीं ख्याल, और कप्तान को अगर मुझे मशवरा लेना भी होता था तो मैं वो बॉलर के सामने नहीं, मैं वो जिस भी बंदे से मशवरा अगर मुझे समझने तो मैं अलग उससे बात करता था, और सबको नहीं बुलाना, किसी एक बंदे की इसको आप समझते हैं कि यार ये इस टाइम पे द राइट। जैसे टेस्ट मैच में बात करता था यूनिस खान से, वनडे में अगर शोएब खेल रहा है शोएब से बात, या हफीज़ खेल रहा है हफीज़ से बात, या लाला, कोई भी एक बंदा उस टाइम पे जो आपको ऐसा कोई भी प्लान आपने करना है वो। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बॉलर को कंफ्यूज अगर आपने किया तो देन, एक बंदे ने यॉर्कर का बोला, एक ने कहा स्लोअर वन का बोला है, चाहे फाइनली आपने उसको कोई और बॉल भी कही है, वो प्रॉपरली उस प्रेशर में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है, क्योंकि दिमाग में पीछे उसके सब कुछ चल रहा है। इस चीज़ से जो बहुत अच्छा आपने एलेबरेट किया, हाईली स्किल्ड, वेरी टैलेंटेड सारे जो हमारे बॉलर्स हैं, लेकिन एक चीज़ जो है पुराने बॉल से इनको बेहतरी लाने के लिए एक ये करना पड़ेगा कि अगर नेट्स में मैंने जितना भी मैंने देखा है, मोस्टली ये नए बॉल से बॉलिंग करते हैं, पुराने बॉल से। सेमी न्यू भी नहीं, बिल्कुल न्यू बॉल होता है। रिवर्स नहीं, बिल्कुल न्यू बॉल से, बिल्कुल न्यू बॉल से। आप कह रहे हैं कि पुराना बॉल कह रहे हैं ना, पुराना बॉल एक तो होता है ना रिवर्स स्विंग होता है, और एक होता है सेमी न्यू, जो दोनों तरफ सेमी न्यू जैसे जहाँ पे आप खेल रहे हैं या तो सेमी न्यू बॉल से ना, इवन जिसने चेंज पे आना होता है। मैं जब तक टीम में रहा हूँ मैंने देखा है कि वो वही समटाइम अगर आपको मिडिल पे पिच मिली है, मैंने वकार भाई को देखा है, ये बॉलर्स को लेके गए हैं कि मिडिल में जो है पुराने बॉल से भी करवाया हर चीज़। लेकिन अभी जो मैंने देखा है कि सारे नए बॉल से बॉल करते हैं। स्पिनर्स भी, स्पिनर्स नहीं, स्पिनर की जैसे नमाज है, नए बॉल से अक्सर करनी होती है बॉलिंग। नमाज ने अक्सर बॉलिंग करनी होती है नए बॉल से, वो आ जाता है पहले बॉलिंग करने इन द पावर प्ले, तो वो करता है नए बॉल से। लेकिन मोस्टली मैंने बॉलर्स को देखा जो पेस बॉलर्स हैं वो नए बॉल से बॉल करते हैं। पुराने बॉल से आपको नेट्स में करना ही पड़ेगा टू लर्न हाउ टू बॉल विद द ओल्ड बॉल। That, but wouldn't the management, the coach be telling them to do that? Waqar, he's telling that आप ये करवाते थे, but wouldn't a coach make? I think any coach would do that. It's a sensible thing to do, Wasim. As a bowler coach आपको I'll used to do it myself. खुद ही आप पुराना बॉल ले लेते थे। कोच ने नहीं बताया था, हम पहले नया बॉल करते थे, 2-2 बैट्समैन खिलाते थे, या 2-2 3-3 जवानी में 3 खिला के फिर थोड़ा ब्रेक लेते थे, या बैटिंग आ गई, बैटिंग पैड करवा दी तो पैड कर लिए, फिर सेमी न्यू बॉल पकड़ के आते थे थोड़ा, फिर रिवर्स हम मुशी को तंग करने के लिए करते थे, टेल एंडर्स को। बाकी बट करते ज़रूर थे हम रिवर्स के भी 1-2 ओवर पूरे स्पाइक्स पहन के जोर लगा के। राइट, जब हम नॉन सीरीज जब अपना ही करके फिर लेग ब्रेक भी शुरू कर देते थे, वकार ऑफ ब्रेक शुरू कर देता कि हेल्प भी कर लें लड़कों की, बॉलर्स कम होते थे ना टोज पे। Interesting. Waqar, you want to add to that?
No, I think काफ़ी scrutiny होगी. Okay, fair enough. Time for Ask the Pavilion, hashtag Ask the Pavilion. आप लोगों के सवालात अब हम लेना शुरू करेंगे. आप भी ये हैशटैग यूज़ करके हमें ट्विटर पे अपना ये पैगामात पहुंचा सकते हैं. पहला सवाल जो है, क्रिकेट इंसेक्ट इनका ट्विटर हैंडल है और ये कह रहे हैं कि सर हम बैटिंग मिडिल ऑर्डर पे तो सब बात करते रहते हैं, लेकिन क्या लगता है बॉलिंग के मिडिल ओवर्स में हमारे कप्तान एक्साइटमेंट में टेम्पो लूज़ नहीं कर देते, रिलैक्स हो जाते हैं, टीम भी और कप्तान भी जब 4 आउट कर लेते हैं, 3 मैच ऐसे हाथ से गए हैं. दिस इज़ क्रिकेट इंसेक्ट. ये इनका आपसे सवाल है. इट्स ओपन फॉर एनीबॉडी टू टेक इट. आई थिंक इसका जवाब ऑलरेडी जा चुका है, क्योंकि हमारे जो 5 बॉलर्स हैं वो अब सारी टीम्स को समझ आ गई है, क्योंकि हम सेम कॉम्बिनेशन से बहुत टाइम से खेल रहे हैं, तो वो प्लान करके आते हैं. अगर नवाज़ ने जैसे नया बॉल किया तो जाहिर बात है कोई मिडिल में आके या नसीम शाह या हारिस रऊफ ज़्यादा ओवर करेंगे जी. लेकिन अगर पेसर्स ने ऊपर से नया बॉल किया है तो फिर जाहिर बात है 2 आपके जो स्पिनर्स हैं उन्होंने आके बॉल करना है. या वी हैव सीन इन सम ओकेजन्स वेयर इफ्तिखार केम एंड ही बोल्ड 3 ओवर्स अगर लेफ्टी खेल रहे थे, तो आई गेस एडिंग अनदर बॉलर इन द साइड वो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, तो यही उसका जवाब मुझे लगता है. उसका जैन देदी जो है उनका सवाल है, आवर बैटर्स आर प्लेइंग द सेम वे सिंस ईयर्स. However, internationally we see top players change their game, improve and add skills to their game. Why don't we do that? I suppose इसका क्वेश्चन का आंसर मिसबा वकार दे पाएंगे. They were around Pakistan team for a couple of years and मेरे ख्याल में इसका जवाब तो बैट्समैन ज़्यादा बेहतर तरीके से. आप बैट्समैन रहे, आप दें इसका जवाब. बट यू माइंडसेट यू आपने सीखा. देखिए बात यह है कि हमारे जो बैट्समैन नॉर्मली ज़्यादातर तो बाबर और रिजवान ही खेल रहे हैं ऊपर, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर वे. तो वो जब ऐसे हो रहा होता है और आपके रन्स हो रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक तो उन बैट्समैनों के लिए भी, और एक आप एक प्रोसेस आपका सक्सेसफुल हो रहा होता है तो आप कहते हैं कि इसको क्यों हम चेंज करें. हालांकि मेरे ख्याल में इट डज़ंट मैटर आप रन्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू नीड टू बेसिकली विद टाइम कुछ ना कुछ आपने उसमें ऐड करना है. जैसे बाबर नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स अगर खेलता है तो उसको अगर वो ओवर द टॉप भी मारना शुरू हो जाएगा सर्कल में तो बॉलरों पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और वो और ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएगा अपने आप को. रिजवान भी कई दफ़ा ज़्यादा इस सोच में पड़ जाता है कि मैंने लंबा खेलना है. हालांकि आप अगर आपकी लग रही हैं तो यू जस्ट मैक्सिमाइज दैट और अगली टीम को बिल्कुल अंडर प्रेशर कर दो. राइट, फेयर एनफ. शोएब, अब स्ट्राइक रोटेशन जो है ना वो एक चीज़ मिसिंग है जो हमारी मिडिल ऑर्डर है. अगर वो होगी, हमारा क्या हो रहा है मसला, जब 13th, 14th, 15th या 16th ओवर में भी अगर बैटिंग आती है ना तो हम बैटिंग ऐसे करते हैं जो 19वें या 20वें ओवर में करनी चाहिए, जहाँ पे आप टांग खोल लेते हैं और आप बस रेडी हैं कि 6 रन मिले या 4 मिले. लेकिन इन कंडीशंस में इट्स नॉट ईजी, और वो हमने देखा है कि दुनिया का बेस्ट प्लेयर भी जो है ही वो स्ट्रगलिंग येस्टरडे, विराट कोहली. yes. तो कंडीशंस आर टफ. तो इसमें यह है कि स्ट्राइक रोटेशन अगर थोड़ी सी ऐड होगी तो फिर आपके बड़े शॉट्स भी लगेंगे और टोटल भी लंबा होगा, और अगर चेस कर रहे हैं तो उसमें आसानी होगी. लेकिन आप भी तो पाकिस्तान टीम के हाथ रहे हैं, अभी नहीं सिलेक्ट हुए, जो भी था. We don't want to go in those lines, but आप इनको बता, being a senior player, आप इनको ये एम्फसाइज करते थे, बताते थे टीम मीटिंग्स में रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक. देखिए वसीम भाई, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है अपनी तारीफ करने की या अपनी बात करने की, लेकिन मैं इनके साथ बैटिंग की है, मैंने आसिफ के साथ की है, मैंने हैदर के साथ बैटिंग की है, मैंने खुशदिल के साथ की है, डिफरेंट जगहों पे इफ्तिखार के साथ की है. तो सिर्फ ये होता है कि आपको रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं इनको, आपको सिर्फ थोड़ा सा ये बताना पड़ता है एज अ नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन कि आप ये बॉलर यहाँ बॉल कर रहा है, ये पिच ऐसी है, यहाँ पे शॉट्स लगेंगे, अभी आपको ये बॉल करेगा, अब आप थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन पे रहो, अगर आपके स्लॉट में आया तो आप मारना. ये जो छोटे छोटे मैसेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, एंड ये मैसेजेस कंसिस्टेंटली जो है ये हमारे इनको जाने चाहिए. देखें हम लोग इंसान हैं, हम गलती करते हैं और करते रहेंगे. लेकिन I understand where you're coming from. I agree 100%. But these guys are professionals. You think Australia या England या other टीमें, top टीमें of the world के मैसेज अंदर भी जो आती होंगी, टीम मीटिंग की बात कर रहे हैं कि जनरल उबाल दे बैटिंग. देखिए वसीम भाई, अब यहाँ पे छोटी सी ये एग्जांपल्स आ जाती हैं कि जैसे
5 एन ओवर या 6 एन ओवर चाहिए था, तो मिड विकेट भी पीछे था, स्क्वायर लेग भी, मिड ऑन भी, और वो स्लो बॉल कर रहा था, वो भी बॉडी में, कि एक तो आप आराम से ले लो, ठीक है, और सम टाइम अगर आपने अच्छा प्लेस कर दिया तो 2, तो एक ये आ गया। दूसरा देखें कि बॉल स्टंप्स को लग के गया तो बहुत सारों को रूल नहीं पता था, ठीक है, वी हैव सीन दीज 2 एग्जाम्पल्स। अब उसमें आई गेस ये रिमाइंडर्स तो आपको देने ही पड़ेंगे, वो चाहे मैनेजमेंट से आए, चाहे लीडर से आए, या जो सीनियर प्लेयर्स हैं आपके टीम में खेल रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली ये रिमाइंडर्स जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे। फेयर इनफ। ऑलराइट, वी हैव गॉट अदर बैटिंग क्वेश्चंस। जैनुल आबिदीन का सवाल है, आई हैव नोटिस्ड आवर बैट्समैन स्ट्रगल अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल, but why they are not working on this despite that we knew we're going to face many short balls in Australia? Please enlighten us. Waqar. I don't know. I honestly don't know. Why didn't they do it? All right, you got your answer there. Ali Hassan का सवाल है, और ये मिसबा आपसे उन्होंने सवाल किया है। Asif Ali started his career under your captaincy in Faisalabad and played a lot of cricket with you. He was good on the short pitch delivery, but nowadays even in warm-up matches he looks like he doesn't know how to play short pitch. It's the same question like this one, but more focus for you. I think you need to consider the conditions. जब आप इन conditions में जा रहे हैं तो आपको उसकी तैयारी करनी है। आपने पाकिस्तान तैयारी का कोई है, उसकी ड्रिल है? तैयारी की बिल्कुल ड्रिल है। मेरे ख्याल में शायद असलम बेचारे जो है वो इससे डबल लंबा हो गया है। वो स्लैब पे आपको पीछे बॉलिंग कर करके हर रोज़ तो स्लैब का क्रिकेट बॉल से प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर हेलमेट पहन के क्रिकेट बॉल से प्रैक्टिस करते हैं। और इवन उस पे फॉर ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू डू लाइक कि उसको थोड़ा सा स्लैब को अगली तरफ से ऐसे टिल्ट, तो साइडवेज मूवमेंट के लिए आप यूँ रखते हैं तो उसकी दूसरी जो बैट्समैन की तरफ साइड है उसके नीचे कुछ रख देते हैं ताकि एक्स्ट्रा बाउंस मिले। और उस पर नॉर्मली पुल मारने की प्रैक्टिस, ये सारे बैट्समैन नॉर्मली वी यूज टू हैव 3 नेट्स या 4 नेट्स। वकार भाई जितनी भी देर हम रहे हैं और अभी भी ऐसे ही चलता होगा, एक में फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, एक में स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं, और 2 थ्रो डाउन के नेट होते हैं जिसमें एक में स्टिक से करा रहे होते हैं ठीक ठाक पेस पे, जो 140-145 पे, और एक पे स्लैब होती है जिस पे नॉर्मली इट्स फॉर द शॉर्ट बॉल। कि आपने शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस वहाँ पे पुल की कर रहे हैं, कट की कर रहे हैं, तो आपको 20 मिनट्स इन ईच नेट मिलता है हर पेयर को। 10 से 15 मिनट आपको उसकी एक्स्ट्रा, और फिर उसके बाद एट टॉप ऑफ दैट और भी प्रैक्टिस आपको मिलती है जिसने एक्स्ट्रा करनी है। तो मुझे लगता है कि वो फिर बैट्समैन को ख़ुद देखना है आपको। जो मैं कल भी एक चीज़ मैंने नोट की है कि आपने जब आपको अपनी पिछली वीडियोस देखी होती हैं आपने कि मैं कहाँ मिसिंग कर रहा हूँ, मेरी बेसिक मेरा कहाँ से मिसिंग है, मैं लेट हो रहा हूँ, उसको देख के आपको जाके फिर वीडियो प्रैक्टिस में बनवानी है और उसको बिफोर द टूर्नामेंट आपने उसको ठीक करना है, वरना ये प्रॉब्लम हो गया। एज अ बैटर आपको ये डिफाइन करना है, शॉर्ट बॉल जो है ना, हम लोग शॉर्ट बॉल डिस्कस करते हैं, लेकिन अब मैं अगर बैट्समैन हूँ, मैं पुल अच्छी मारता हूँ, तो मैं इस वाले बॉल के साथ मुझे डील करना है जो मुझे तंग करता है, उसको या मैं छोड़ दूंगा जो मेरे हेड हाइट पे है, क्योंकि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ पे बाउंस है और पेस है तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मुझे वो अवॉइड करना है। लेकिन अगर मैं वो वाला बॉल अच्छा खेलता हूँ जो मेरा हेड हाइट वाला है, फिर मुझे पुल को ग्लांस करना पड़ेगा अगर मैं उस पर वीक हूँ। तो ये डिफाइन करना है बैट्समैन को कि मैं किस पे मुझे पूरा अबूर है। नदीम निसार का सवाल है आज द पवेलियन में, और वो पूछते हैं, डोंट यू थिंक वी मिस्ड अबाउट 8 to 10 रन्स ड्यू टू लैक ऑफ रनिंग बिटवीन द विकेट्स yesterday? शोएब यही तो बता रहे इतने अरसे से कि रोटेटिंग द स्ट्राइक इज सो इम्पॉर्टेंट इवन इन दिस फॉर्मेट। अभी एक स्टैट हमने दिखाया था परसों तरसों कि जो बैट्समैन चेजिंग में जो पावर हिटर्स कंसिडर किए जाते हैं, उसमें मिलर भी था, उसमें शोएब भी था, मिसबा वाज देयर एज वेल, पांड्या भी था उसमें। वो ये था कि उनका सबसे ज़्यादा सिंगल्स थी उनकी, पावर हिटिंग के अलावा रोटेटिंग द स्ट्राइक, दैट्स व्हाट ही शोएब जो मॉडर्न हमारा T20 ग्रेट है वो कह रहा है, पिछले सालों से कह रहा है रोटेट द स्ट्राइक एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो ये रोटेट द स्ट्राइक जब करेंगे तो उसके लिए थोड़ी फिटनेस भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, दुक्के लेने हैं, सिंगलें लेनी है, फिर उसके बाद फील्डिंग करनी है आके। एग्जांपल आपके सामने मुश्किल पिच थी, तो आप देखेंगे विराट कोहली ने और हार्दिक पांड्या ने उन्होंने ठीक ठाक रनिंग की है। उनको पता था कि यहाँ हम हिट मारेंगे,
तो दैट्स 50-50, इवन 50-50 नहीं 30-70, 70% आउट के चांस है, 30% बाउंड्री के चांस है। तो उन्होंने मैच करीब किया तो उसमें उन्होंने दुक्के इतने ज़्यादा लिए हैं, 3 स्कोर उन्होंने लिए हैं बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली वाई इज़ अ गुड चेज़र, चेज़ में वो क्योंकि वो 100 रन या 125 या 150 भी वनडे में करके वो ऐसे दौड़ रहा होता है कि जहाँ 1 है वहाँ 2, जहाँ 2 है वहाँ 3। ये बहुत बड़ी एग्जांपल थी कि 10 ओवर्स में उनके 45 रन्स थे, उसके बाद उन्होंने डबल्स, फिर कई जगह पे उन्होंने 3 रन भी लिए हैं। तो अगर चेजिंग 160 और पहले 10 ओवर में आपके 45 हैं, तो फिर भी ये देखें कि लास्ट 115 जो रन्स हुए हैं उसके बावजूद उसमें सिंगल्स और डबल्स बहुत ज़्यादा है। और फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि स्टिल आपके पास इतनी गैस हो गया, आपने इतने रन्स दौड़ के लिए और हारिस रऊफ को जो शॉट मारी है विराट ने, सेकंड वाली पहली वाली दैट वाज जस्ट मतलब अगर फिटनेस नहीं है तो आप नॉर्मल छक्के वाला बॉल भी आपसे मिस हो जाता है और वो कहीं से भी छक्के वाला बॉल डेविड विले से मिस हुआ था ना उस दिन, 2 दुक्के गैस निकल गई थी उसकी। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है, बिल्कुल है। मोहम्मद यूसुफ का सवाल है। मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं सर डू यू वकार आपसे सवाल, सर डू यू थिंक दैट बाबर शुड स्टेप डाउन फ्रॉम ओपनिंग एंड कम एज 1 डाउन व्हाइल सेटिंग टारगेट एंड ओपनिंग व्हेन दे आर चेसिंग? सो चेसिंग के वक्त बाबर जो है वो ओपनर आए और जब टारगेट सेट करना हो तो उनको 1 डाउन आना चाहिए। ये सवाल है। It's too late now. Okay, you got your answer. It's too late. You got one-liners. Very perfect. अच्छा, another question एक आया हुआ है, मैं नाम नहीं मुझे याद, सॉरी। वो क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है कि वो आसिफ, क्या गाइस प्रेजेंट क्रिकेटर्स शोएब भी बता सकते हैं कि ये इसकी प्रैक्टिस होती है जो वो हमने देखा है कि 2 फील्डर गए हैं, एक ने ऐसे कैच किया बाउंड्री से बाहर निकलते निकलते बॉल फेंक दी, इसकी प्रैक्टिस होती है, नेचुरल तो नहीं हो सकता ना ये। अगर आसिफ ने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू हैव टेकन दैट कैच यस्टरडे। देखिए वसीम भाई, अगर आपको मैनेजमेंट ने, आपके फील्डिंग कोच ने आपको ये प्रैक्टिस नहीं भी करवाई है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है, अगर आप किसी के साथ यू पार्टनर आप और उसे बोलें यार चलो आओ हम ये जो है ना वो कर लेते हैं प्रैक्टिस, या अगर आप अकेले भी हैं तो आप सम टाइम आपके आसपास कोई फील्डर नहीं आ सकता, दूर खड़े हुए हैं तो आप वो भी प्रैक्टिस करते हैं कि बाउंड्री लाइन पे आप बिल्कुल खड़े हैं, कैच सिर्फ बाउंड्री के साथ है, आपने कैच किया, उसको फ्लिप किया ऊपर और फिर आप वापस आए और आपने वो कैच किया, तो इस पे जरूर प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्मली आप करते हैं फील्ड में, आप मैंने देखा है टीम, जी बिल्कुल करते हैं, पाकिस्तान टीम भी करती है। ओके All right, जनाब, हरीम का सवाल आया, डोंट यू थिंक शान मसूद शुड हैव ट्राइड टू हिट बिग एंड गेट हिमसेल्फ आउट rather than staying on the pitch till the end, considering that he is not very useful in the final overs? I don't even know how to. आप कौन सा मैच देख रहे थे भाई? I know. Why are you reading these sort of questions? Yeah. Well, they come up on this timeline as they come. Waqar, you want to do this? You're more than welcome No, to choose the questions by सारी yourself. नाराज हो गया, आज की हो गया? You're welcome to choose these questions if you want. As they pop up on the line, I want Shoaib Malik to share the success story during his tenure in Sialkot Stallions and the way you, Shoaib Malik, led this best ever T20 team in history of the format. Is there any chance of Sialkot Stallions to be added in the PSL after the 10th edition? Shoaib, this is for you. Well, I would love to. और मैं ये भी चाहता था कि ये जो पाकिस्तान जूनियर लीग हुई है उसमें भी सियालकोट की टीम होती। आई डोंट नो व्हाट्स इनसाइड जो भी था, लेकिन ये था कि मेरी ख्वाहिश थी कि सियालकोट की टीम ज़रूर होती उसमें भी। और PSL में अब मलिक तो अब कह रहा है, मैं तो बहुत दफ़ा ये पहले कह चुका हूँ कि सबसे पहला नाम ही सियालकोट स्टैलियंस का होना चाहिए था जब पहली PSL हुई थी। और फिर दूसरे नंबर पे अगर किसी टीम का हक था तो वो फैसलाबाद का था, क्योंकि पता नहीं कितने फाइनल्स इन्होंने जीते हैं, हमने शायद 2 जीते हैं, लेकिन हमने कोई 4-5 फाइनल्स खेले हैं। तो वही आई थिंक फैसलाबाद एंड सियालकोट, और इतना बड़ा उनका फ़ैन क्लब है पीछे, अभी तक वो लोगों ने उसकी शर्ट आएगा। सियालकोट वाले को पैसे है नहीं लेकिन कट देने, am I right? That's the only reason I can think of. And you looked at Shoaib Malik for some reason. I want to know why that look was there, Waqar. Because he's from Sialkot. आप आज सियालकोट आज आप सिर्फ कहें और अगले दिन आप जितने पैसे कहेंगे लोग देंगे, फैसलाबाद ही में।
So then what is the problem then? नहीं पीसीबी ने टीमें दो बेचनी है तो नाम आएंगे ना। ए मेरी गल सुनो, 10 साल तक मेरे ख्याल में और टीम ऐड नहीं हो सकती। फखर भाई, Till 10 years. सियालकोट के प्लेयर्स रख लो, टीम पावे ना रखो। वो तो रहेगी। इंटरेस्टिंग, मुझे निकाल के। ठीक है। अच्छा जी, सुहेल मुनीर का सवाल आया आज पवेलियन, हाउ मेनी चांसेस टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स फॉर पाकिस्तान? Yeah, it's a very difficult question to answer. It's early days. हर टीम ने अभी एक मैच भी नहीं खेला. So yeah, अब relatively अब आसान होना चाहिए because आपने साउथ अफ्रीका से जीतना है और उसके बाद आपने बाकी जो आपकी टीमें हैं उसमें आपका बांग्लादेश भी है, उसमें आपका जिम्बाब्वे भी है, उसमें आपका नीदरलैंड भी है, am I right? Yeah. नीदरलैंड भी है. So इनसे आप जीतें अपने चारों के चारों मैच अगले पांचों के पांचों and then see what happens. Yeah. Okay. Hasnain Ishfaq का सवाल आया है for Agha Bata, and he's saying, Agha Bata, do you think we must give rest to Haris Rauf after this event because he has been playing consistently for more than a year? Isn't it harmful for him? That's the question. No, I don't think it's the right time to sort of leave him out. After that, what? It's World Cup. After this event. I thought you were saying after this No, you're saying after the event, meaning this World Cup. Yeah, I'm with you on that. I think he deserves a little break. लेकिन वकार भाई, आपको लगता है कि वो टेस्ट तो खेल ही नहीं रहा, तो उसको तो रेस्ट, आपकी जब टेस्ट सीरीज आती है तो उसको तो रेस्ट वैसे ही मिल जाता है. वो T20s ही मेनली, हम वनडे वैसे ही नहीं खेल रहे हम ज़्यादा. Yeah, but sometimes it's just a toll भी आ जाता है ना. You just mentally and the pressure, you want to go away from cricket for a little while also. Remember that. Cricket से आप थोड़ी देर महीना 2 महीना दूर रहते हैं. You keep training, you keep doing your training. Don't bowl very little, and then come back. You'll feel a lot better. You'll be fresher, and execution जो आपके plans की होगी will be a lot better. Okay, I've got a question here. This is from Anish. Anish, I'll just leave it that. It's GRUPTVA. I don't know how to pronounce that. I do apologize. Hello, I'm from India and I have a question for all the greats on the panel. It's about the review for the LBW. The umpire's call leaves a lot of question marks in everybody's head because the graph shows that the ball is hitting the stumps, but it's umpire's call. If technology is there, then why the umpire's call? It is complicated. I agree with you, Anish. Yeah. Yeah, Anish. I agree with you. It's very complicated law. It's not 100%. Technology should be 100%. Apparently, they say it's 98%. Doesn't make any sense. Either it hits the stump or it's not hitting the stumps. वसीम भाई, आपकी बात ठीक है. मेरी इनके साथ काफ़ी इस चीज़ पे, वकार भाई जब थे कोच तो एक्चुअली वेंट टू ICC हेडक्वार्टर और वहाँ पे हमारी ये बात भी उनसे. ठीक है, हम मानते हैं कि अगर ये आपको लगता है कि 98% एक्यूरेट है, ओके फाइन, देन वो डिसीजन वही रहना चाहिए ना, वो दोनों के लिए है. जब अंपायर के लिए वो एक्यूरेट नहीं है तो वो बैट्समैन के लिए या हमारे लिए भी एक्यूरेट नहीं है. तो फिर ये क्यों है कि उसने अगर आउट दे दिया है तो किस भी और हल्का सा क्लिप भी कर रहा है तो उसी को आप सेव कर रहे हैं. और अगर उसने नॉट आउट दिया और हल्का सा क्लिप कर रहा है तो नॉट आउट. इट मीन्स यू आर सपोर्टिंग अंपायर. इसमें मैंने उनको इस हद तक कहा था कि आप उसकी नेगेटिव मार्किंग ना करें. बेशक अंपायर की अगर हिट कर रहा है तो उसको कंसिडर इट एज अ राइट डिसीजन, नो प्रॉब्लम. बट इट शुड बी वन वे कि अगर थोड़ा लग रहा है नट आउट है तो नट आउट है, एनी केस आउट है तो ताकि सबको पता हो कि यार अब मैंने लेना है रिव्यू या बैट्समैन ने लेना, उसको पता हो. So you basically saying कि अगर अंपायर ने आउट दिया हुआ तो that has to be 50% hitting the stumps. Is that right? Should be. I mean, इसको वैसे भी कर सकते हैं. अगर स्टंप्स को लग रहा है और अंपायर ने नहीं आउट दिया हुआ और 50% से कम लग रहा है, अगर एक दफा स्टंप को बॉल लग रहा है तो वो आउट है. बिकॉज़ 50% गेज करना भी वहाँ पे ये भी डिस्कशन हुई थी हमारी. 50% पे भी डिस्कशन हुई थी और इस पे भी सजेशन यही थी कि आपको कितने % लगता है कि ये एक्यूरेट नहीं है. इफ़ यू फील इट्स 10%, इट्स 20%, तो आप वो रेशो कर दे ना, 80-20 कर दे. ठीक है, 20% या 30% भी हिट कर रहा है तो उस दैट स्टैंड्स आउट. अगर उससे कम लग रहा है नट आउट. लेकिन सबके लिए एक कर दें. देखिए, ये ना करेंगे कोई टेक्नोलॉजी को और अंपायर को थोड़ा सा मार्जिन दिया गया, दोनों चीज़ों को मार्जिन दिया गया. बेसिकली है क्या कि इवन ये टेक्नोलॉजी टेनिस में भी यूज़ होती है, अब तो गोल्फ में भी यूज़ होना शुरू हो गई है. तो ये बेसिकली जो उसका फर्स्ट इम्पैक्ट होता है दैट इज़ 100%. ठीक है. इवन सेकेंड
जो सेकंड इम्पैक्ट है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ 100%, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स में एक ही इम्पैक्ट दिखाया जाता है। टेनिस में जब आप सर्व करते हो तो वो गिरता है तो एक इम्पैक्ट है, इसमें देयर आर 3 impacts, remember that. So first impact is on the pitch, the second impact is the pad, the third one is the stumps, ठीक है ना। So basically यहाँ से पैड तक ठीक है, जब पैड को हिट करता है उससे आगे जो है ना स्टंप्स को जो बॉल जाता है ना, दैट इज हैंड सॉर्ट ऑफ हेल्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, उसमें उसको मार्जिन दिया है टेक्नोलॉजी ने कि ये कुड बी लिटिल बिट डाइसी, तो उसमें 5-10% उन्होंने मार्जिन रखा है। इसीलिए ये जो आप देखते हैं ना कि जी अंपायर्स कॉल, नॉन अंपायर्स कॉल, वो कहते हैं कि जी नेकेड आई से जब अंपायर को लगा कि आउट है दैट्स आउट, अगर विकेटों को नहीं लग रहा इट्स अ ब्लंडर देन इट्स नॉट आउट, अदरवाइज इट्स आउट। अगर टेक्नोलॉजी में उसको लगा कि इट्स नॉट आउट एंड देन वी ब्रिंग इन द टेक्नोलॉजी, फिर उसको 10% दे के तो फिर दैट अंपायर्स कॉल कम इन टू प्ले कि जी अगर वो हल्का सा क्लिप कर रहा है तो इट्स नॉट आउट। I'm basically saying that they're trying to save those two things rather than just but being that a is bit still more leaving clear. ambiguity at the end of the day. You're engaging the whole world, क्योंकि Yeah. दुनिया देख रही होती है। बिल्कुल। So उनको क्लैरिटी देने के लिए इस पे आई एम श्योर और बेहतरी आ सकती है इस डिसीजन। I'm sure in the ICC is coming going to be days, I think it will considering. get better. All right, tomorrow is another day at the ICC Men's T20 World Cup. This is the game in store for you tomorrow. We only have one game tomorrow, and this is the match जो कल हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे. It is Australia versus Sri Lanka. This is coming from Perth, and this is going to be a very good game because Australia are wounded. And Sri Lanka, well, they also want to make sure that they keep progressing in this World Cup. What do you think, Wasim? Are we in for a big contest? They're playing tomorrow? at the Waqar, I mean not at the Waqar but at Perth. Perth, yeah. And we've seen the pitch against England-Afghanistan game. It was a flyer. Yeah. Back of a length ball, keeper kahan se pagda tha. So yeah, it'll be fun to watch their fast bowlers against Sri Lankans' talented batting. Yeah, this is going to be really, really fun. Well, gentlemen, thank you very much, Shoaib. Thank you, Waqar. Thank you, Wasim. Thank you, Misbah. We will all get a well-deserved sleep in tomorrow morning. You will. Yeah, definitely I will. There's only one man who will be glowing no matter what at 6 a.m. in the Yeah, morning. abhi aap. आज तो अभी नींद पूरी नहीं हुई। आज तो मेरी नींद पूरी। आज मैंने मिसबा ने सोना ही नहीं दिया I'll be at the दोपहर golf को। course at 6:30. You are? Well, good luck. Have a great game of golf. Good luck. Tee फजर off की well. नमाज बिल्कुल टाइम पे पढ़े, कौन? उठना पड़ता है ना सुबह। हाँ, ये फॉर अ चेंज हम लोग सारे के सारे उस साइकिल में हैं। सो एनीवे जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू बैक हियर टुमारो 2:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। कल दोपहर 2:30 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे बराह रास्त। और एक बार फिर टू ऑल द पीपल वॉचिंग अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेटिंग दिवाली, अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट द Pavilion. I'm Fakhr Alam. You're watching A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. We'll see you tomorrow at 2:30 p.m. Pakistan Standard Time. Till then, take care of yourselves. Good night.